اگر میں رہا تو انصاف ہوگا، اب عدلیہ میں تقسیم ہونے نہیں دوں گا، ایجنسیوں کی مداخلت میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوگی، پاکستان کو برباد کرنے والے اپنے ہی لوگ شامل ہیں، ماشاءاللہ کی دھمکی دینے والے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے انصاف ہوگا، آخرکار ظلم کو ایک دن ختم ہونا ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ وتھ ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنے سیاسی و قانونی تجزیے کے ساتھ آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس طرح ہم غارت گروں کی طرف سے عوام کے پیسوں سے عوام کی آواز دبانے کی جو فائر وال کے ذریعے کوشش کی گئی ہے، مذموم مقاصد کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ آج بہت سے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے بشمول لیڈرشپ انسداد دہشت گردی کی عدالت طاہر سپرا صاحب کی کورٹ میں تھے، جس میں 5 کیسز امپورٹنٹ تھے۔ ایف آئی آر نمبر 360D، ایف آئی آر نمبر 143، پی ایس گولڑا، ایف آئی آر 128، پی ایس بارہ اور اس کے علاوہ ایف آئی آر نمبر 1240 انڈسٹریل ایریا شامل تھے، جس میں ورکرز اور بہت سے لیڈر، جس میں شبلی فراز صاحب تھے، اس میں عمر ایوب صاحب تھے، علی نواز صاحب جو ہمارے صاحب کا ممبر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریجن کے پی ٹی آئی کے صدر تھے، اور ڈیفرنٹ لیڈرز بھی موجود تھے۔ اور آج اس میں مختصر یہ کہ زیادہ ہیئرنگ نہیں ہوئی، کچھ بیل بیفور اریسٹ تھی وہ کنفرمیشن ہوئی، اور اس کے بعد 5 ستمبر کی 3 کیسز میں ہو گئے ڈیٹ ہو گئی، جبکہ ایک کیس جو کہ مقدمہ نمبر 1240 کا تھا، اس میں چارج فریم کے لیے تاریخ ہوگی ہے 21 ستمبر کے لیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ میں جو کہ اس کے میں جو ہم نے چالان دیکھا ہے اس میں ایویڈنس ہی موجود نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم انڈر دا لا سیکشن 265D ہمیں اپلیکیشن موو کریں گے، اور اس میں ہم یہ استدعا کریں گے جناب کیونکہ ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور چارج فریم کرنے سے لیے اس کو اسکروٹنی کر لے، اور ایٹ دس سٹیج آپ اس کو ڈسچارج کے کیس میں تمام ورکرز کو لیڈرز کو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں 6 کیسز ورکرز کے بشمول لیڈران کے، جس میں بیرسٹر گور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کے کیسز تھے۔ اس میں ہمارے ایک لیگل ٹیم کے ایک اہم رکن فتح اللہ برکی اور ان کے ساتھ دیگر وکلا بھی شامل پیش ہوئے، اور ستمبر کی مختلف ڈیٹیں اس کیس میں پڑ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 اور جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہے وہ میں کیس ٹو کیس ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سب آج کل ذکر کر رہے ہیں کہ آج کل سیاسی موسم کی تبدیلی کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1-1.5 ہفتے پہلے کتنا یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ تبدیلی کیوں آئی؟ سب سے پہلے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے فیصلہ آنا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے لوگوں کا جو ہے نا وہ سمت متعین کریں گے، کیونکہ یہ باطل اور فسطائی قوت یہ چاہتے ہیں کہ آئین کو بھی کھلواڑ بناتے ہوئے اپنی مرضی کے پرسنل اسپیسیفک فائدے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے، جس میں سب سے بڑے بینیفیشری سب کو معلوم ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو 3 سال لانا چاہتے تھے، اور پھر اپنی مرضی سے تمام کھیل نچانا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ اس میں ناکامی ہوئی، اور گیم جو فل بینچ کا فیصلہ ہے اس کے بعد تبدیل ہوئی، اور یہ سمجھ کہتے ہیں نا انگلش میں 8 6 and 7، اور یہ تتر بتر ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے، ان کے پیر جل رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس کے بعد پھر انہوں نے جو اسٹیپ لیا آپ سب کو معلوم ہے کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے پریس کانفرنس کیے گئے، ان پر پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا، اس کے علاوہ عمران خان، قاسم سوری اور ڈاکٹر الوی کے خلاف انڈر آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان غداری کے مقدمہ کی دھمکیاں دی گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا نہ ورکر گھبرایا، نہ لیڈر، نہ عمران خان، اور عمران خان اسی طرح گرج کے ساتھ قانون اور آئین کے مطابق ان کو للکارتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کے اپنے اندر جو ہے نا پریشانی جو ان کا مدغم ہوا ہے، یہ املگمیشن ہوئی ہے تمام کرپٹ جماعتوں کا، اور پیچھے جو طاقتیں ہیں غارت گر سب کا، وہ مختلف ان کے جو ڈسپیوٹ ارائز ہوئے۔ اب جو غارت گروں کے اندر یہ چیزیں تقسیم ہو رہی ہے کہ جتنی بھی ساری کوشش کی ہے، بینیفیشری تو یہ سارے چور کرپٹ لوگ ہیں جو کہ اس وقت فارم 47 کے ذریعے ہمارے ذریعے
प्रोविंस में भी और फेडरेशन में बैठे हुए हैं और गालम गलोच के लिए या गाली सहने के लिए, अवाम की नाराज़गी या नफरत सहने के लिए हम मौजूद हैं। इसलिए जब उन्होंने एनालाइज किया, अब मुख्तसर ये है कि जो लंदन प्लान है अब इनको गारत होता हुआ नजर आ रहा है और ये रीथिंक कर रहे हैं जो लेकर आए हैं, और उन्होंने कहा बेनिफिशियरी तो ये है, नुकसान हमें हो रहा है। मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब ने भी जेल से भी बयान दाग दे दिया कि जनाब आप लोग पीछे हट जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, हम देख लेंगे इनको। फिर इनकी मुसद्दिक मलिक की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से कि जनाब हमें तो हुकूमत दी गई है, जब चाहे ले लें, लेकिन हम दावत देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। राना सनाउल्लाह कहता है कि जनाब हमने जो कल जाना है आज भी इमरान खान साहब के पास जाने के लिए है, लेकिन हमें खुदारा हाथ ना लगाया जाए। तो मुख्तसर ये कि मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैसला था जो कि 12 जुलाई को फैसला आया फुल बेंच का, उसकी वजह से गेम चेंज हुई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मैं बताता चलूं कि उन्होंने भी हाथ खींच लिया है कि जब अपने पर जल रहे होते हैं तो बंदा रोक लेता है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो 12 जुलाई के फैसले के बाद जो कहा जा रहा था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मानो तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेबसाइट पे उन्होंने वैसे पार्टी भी शो कर दिया, उनके जो मेम्बरान को भी शो कर दिया, रिजर्व सीट की तमाम जो है लिस्ट पे चली गई है और 3 जुलाई तक फाइनल होके इंशाल्लाह रिजर्व सीट्स भी मिल जाएंगी। अब इसके अलावा एक और जो खबर इसमें मालिक, डॉक्टर मालिक जो एक जर्नलिस्ट है वो गो के हमें एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये जो जर्नलिस्ट हैं इनके किराए के लोग वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पता लगता है गेम चेंज हो रही है, जिसमें नजम सेठी भी है। मालिक साहब का बयान कोट कर देता हूँ, नजम सेठी ने भी मोस्टली यही कहा है। और मालिक साहब कहते हैं लोगों का गुस्सा अब फौज पर ज्यादा और हुकूमत पर कम है। इमरान खान के भी बयान आए कि 8 फरवरी के इलेक्शन में भी फौज, मईशत में भी फौज, फायरवॉल में भी फौज, सारी चीजों का बोझ अब फौज पर आ गया है। अब फौज को फैसला करना होगा कि वो सारे बोझ उठा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि फौज अब इनकार कर रही है और पीछे हट रही है और कहते हैं कि जनाब आप खुद स्कोर कर लें। मुख्तसर ये कि मैं पहले भी अपने व्लॉग में कहता रहा हूँ कि इंशाल्लाह अक्टूबर तक चीज़ें चेंज होंगी और इलेक्शन की बात तो उस पर हम फिर किस वक्त व्लॉग करेंगे कि यार दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। मुख्तसर ये कि इनका बुरा वक्त आना शुरू हो चुका है। आखिर में एक और चीज़ पर मैं तजिया करना चाहूँगा कि जमात इस्लामी का महंगाई खसूसन बिजली के नरखों में होश रवा इजाफा और IPPs के साथ किए गए अवाम दुश्मन मुआहदों की मनसूखी के मुतालबे पर रावलपिंडी में धरना दिया जा रहा है, जो कि 26 जुलाई को शुरू किया गया। इस पे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो फस्ताई और गारत लोग हैं, ये तमाम नेक्सस है, इविल नेक्सस, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 साल में तोड़ने की हर तरह कोशिश कर ली, लेकिन इनको मुख्तसर बता रहा हूँ नाकामी हो गई। ना ये बंदों को भी छुड़ा दिया, पार्टी भी बना लिया, लोगों को कैद भी कर दिया, चार दीवारी की तकद्दुस की पामाली भी हुई, इनको टेररिस्ट बना दिया, अब डिजिटल टेररिस्ट भी बनाना शुरू कर दिया है, अब इसके अलावा साइबर टेररिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आए और पाकिस्तान तरीके साफ वहीं पर खड़ी है, बल्कि दिन ब दिन मजबूत हो रही है। उसकी वजह यह है कि ये ना साइबर टेररिस्ट है, ना ये डिजिटल टेररिस्ट है, ना ये टेररिस्ट है, ना ये किसी इन्वॉल्व में पढ़े लिखे लोग हैं। हर तबका पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शामिल है, हर जबान शामिल है, हर नस्ल शामिल है, हर कौम शामिल है, और ये 24 करोड़ आवाम है। ये समझ नहीं पा रहे। लेकिन मुख्तसर ये है कि इनकी तमाम कोशिशें जब नाकाम हुई हैं, तो अभी मैं गुज़श्ता बता रहा था कि KPK में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मैं समझता हूँ कि 99% KPK ने सीटें जीती हैं। 44 में से 42 नेशनल असेंबली की और 115 में से 106 या 107 सीटें प्रोविंशियल असेंबली की जीती हैं। तो मुख्तसर ये कि इसके स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ना चाहते हैं, जो आपको पता है पहले ये कोशिश की गई जनाब ज़रबे इस्तेकाम क्या रखा है, अज़्म इस्तेकाम का, उसके वाले से ऑपरेशन नाकाम हुआ, लोग खड़े हो गए हैं वहाँ के और उन्होंने बताया कि जब मज़ीद यहाँ पर हम खूनरेजी नहीं होने देंगे, और उसमें भी नाकामी हुई। फिर जब और भी इनके जो एजेंडे में कामयाबी नहीं हुई, तो एक प्लान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खसूसन KPK में और अमूमन पूरे पाकिस्तान में कमज़ोर किया जाए। तो TLP को सबसे पहले धरने के लिए लाया गया, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुए। वहाँ पर भी गारतगरों के नुमाइंदे बैठे थे, लेकिन 150, 200, 300 से ऊपर नहीं गए। तो मुख्तसर ये कि चंद दिन बिठाने के बाद जब नाकामी हुई तो उनको वापस भेज दिया गया। और फिर
मैं फिर बताऊंगा और पहले भी अपने वीलॉग में बता दिया है, होशियार रहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहें, इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहें। ये मुख्तलिफ हीले बहाने से आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर सामने लाएंगे ताकि इनके वोट तोड़े जाए। सराज साहब का बयान सबके सामने है कि जनाब अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रुकन ये छोड़ के जमात को ज्वाइन करें। लेकिन सबको मालूम है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सारे एनालाइज कर रहे होते हैं। मुख्तसर ये कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा रहा तो फिर पहले भी पाकिस्तान जमात इस्लामी को डी चौक में धरना करवाया गया और अब ये धरना करवाया जा रहा है पिंडी में, और उसका मकसद IPPs का है, वो अलग कहानी है। मुख्तसर बता दूं कि ये भी तंग है क्योंकि IPPs जब तक मामलात हैं, पहले भी इन्होंने 10-10, 20 साल के एग्रीमेंट्स किए जो कि अवाम दुश्मन एग्रीमेंट्स थे, और इसमें ये सारी ताकतें हैं जो इस वक्त करप्ट मौजूद हैं। इसमें लंबी कहानी है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। मुख्तसर ये कि 80% IPPs पाकिस्तानी चला रहे हैं और इनके पीछे देखा जाए तो वही 40 खानदान है, यही नवाज शरीफ फैमिली, यही सरदारी फैमिली और इस तरह के मुख्तलिफ, और फिर उसके पीछे जो गारतगार है उनके भी अपने अपने शेयर्स होते हैं, वही है सारे। एक तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कल बता रहे थे एक इकोनॉमिस्ट कि जनाब इन्होंने 2014 में ऐसी कंपनी से माहिदा कराया जो 60 अरब रुपए उन्हें लगाए और 1 साल के अंदर 400 अरब रुपए कार्टलाइजेशन के जरिए कमाए। इससे बड़ा जो रियल एस्टेट हम कहते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत कमाई है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कार्टलाइजेशन है जिसमें आवाम से 200-400 अरब नहीं बल्कि 3000 अरब से ज्यादा जो चंद सालों में कमाया गया है। और मजीद अब एग्रीमेंट 10-10 साल के लिए कर रहे हैं। उसके चंद क्रक्स बता दूंगा जिसका आपको मालूम हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं चल सकता जब ये 1993 से शुरू हुआ था, लेकिन वो 2-4 IPPs बेनजीर दौर ने अप्रूव किया था, फिर मुशर्रफ ने भी 2-3 IPP से अप्रूव किया, फिर जरदारी साहब ने 2-3 किया, लेकिन फिर 2014-15 में नवाज शरीफ ने इन बल्क अंधेवा पेपरा रूल्स के खिलाफ इन्होंने एग्रीमेंट्स किए, कोई एग्रीमेंट्स का पता नहीं था और सारे अपने बंदे थे और उन्होंने हजारों अरब रुपए कमाए हैं। यही सारे लोग हैं और 100 से ज्यादा जो इस वक्त IPPs कर रहे हैं उसके आपकी जेब से निकाल रहे हैं। अगर ये IPPs के मादे रहे और मजीद जो कर रहे हैं सुना है 20-10 साल के, तो पाकिस्तान मजीद नहीं चल पाएगा। आज सारा बोझ अवाम पे डाला जा रहा है। तो इस वक्त ये गारतगार या इसके अलावा जो स्टैब्लिशमेंट है ये भी तंग हो चुकी है। तो असल तो बेनिफिशरीज ये हैं। तो मुख्तसर ये है कि इसलिए इनको लाया गया है ताकि जनाब इनके फॉर एग्जांपल इनके साथ मायदा हो जाता है कि जनाब जितने भी ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं या जजेस हैं या जर्नल्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या वापडा के लोग हैं, ये भी बिजली उसी तरह पैदा करेंगे, बिल देंगे जिस तरह आवाम दे रही है, या चंद छोटी छोटी चीज़ें बात के हम प्रोटोकॉल का हम कम कर देंगे, अपने अखराजात कम कर देंगे और हम नेगोशिएट करेंगे इन IPPs के साथ, तो ये कामयाब ठहरेंगे। और फिर ताकि इनकी अपनी एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है या पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाए, और ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम होगी। तो मुख्तसर ये कि ये भी साजिश है गारतगरों की, आवाम को पता है, लेकिन मैं भी एक हारबिंजर के तौर पर सदाए जर्स दे रहा हूँ आपको कि इनके पीछे बिल्कुल मालाफिडी है। आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद छोड़ें तो इंशाल्लाह आप देखिएगा पिंडी इस्लामाबाद कैसे उमड़ आता है सैलाब। इसमें चंद चीज़ें, अब एक और शख्स हैं जो गौहर एजाज साहब हैं जो कि बातिल फस्ताई इंटरम दौर में ये ट्रेड मिनिस्टर भी रहे हैं, अच्छे इंसान है लेकिन ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। वो भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, IPP से जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने बल्कि डाटा भी दिया, बल्कि कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो उनकी एक चीज़ बता दूं, 4 पावर प्लांट्स ने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की और हर माह 1000 करोड़ वसूल कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें। और मारिया मेमन कहती हैं अपने एक प्रोग्राम में, आवाम को दिए गए बिजली के तबाहकुन बिलों के पीछे शरीफ खानदान के लगाए हुए IPPs हैं जो बिना बिजली पैदा किए आवाम को लूट रहे हैं। 3 पावर प्लांट ऐसे हैं जो बिल्कुल बिजली पैदा नहीं कर रहे लेकिन कैपेसिटी पेमेंट उन्हें अदा की जा रही है। 37 प्लांट्स ऐसे हैं जो 25% से कम बिजली पैदा कर रहे हैं और 60 प्लांट्स ऐसे हैं जो 25% तक बिजली पैदा कर रहे हैं लेकिन कैपेसिटी के पेमेंट्स में पूरी वसूल कर रहे हैं। उसकी मिसाल कैपेसिटी पेमेंट इसी तरह ही है, बड़ी वाज़ेह तौर पे कि आप एक 50 किलो की बोरी लेकर जाएं और आप दुकानदार से कहें कि जनाब मुझे 5 किलो आटा दे दें। अब आटा अगर 100 रुपये किलो है तो आपको 500 रुपये पे करना है। वो 5 किलो आटा देता है, 500 के बजाय कहता है जनाब मुझे आप 5000 दे दें। आप पूछते हैं क्यों भाई, मैंने तो 5 किलो लिया और उसका 500 बनता है। तो जवाब दे नहीं,
اس آٹے کی بوری کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے جناب 50 کلو کی، لیکن آپ کی مرضی، آپ 5 لیں 10 لیں، جو آپ نے 5 لیے لیکن میں کاٹوں گا 50,000 کی. تو یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. جو 45 کلو کا جو مفت پیسہ ہے وہ ان غارت گھروں کے پیسے جا رہا ہے. یہ سارے یہ شامل ہیں، انہی کی ساری لگی ہوئی ہیں آئی پی پیز. اور ایک اندازے کے مطابق بتا دوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بھیانک معاہدہ ہے یہ. بجلی بنانے کے لیے جو تیل استعمال ہوگا وہ پاکستان خرید کر دے گا. اب چاہے تیل کی قیمت عالمی منڈی میں بڑھے یا کم ہو، ان کو نقصان نہیں ہوگا. 2، بجلی کی قیمت میں حکومت پاکستان ڈالرز میں ادا کرے گی. اب ڈالر جتنا مہنگا ہوگا بجلی بھی اتنی ہی مہنگی ہوگی. 3، حکومت پاکستان آئی پی پی سے بجلی خریدے نہ خریدے پیسے پھر بھی ادا کرے گا. مطلب ہر حال میں پاکستان اور عام آدمی کا خون چوسا جائے گا اور ان کا نچوڑا جائے گا. تو میرے ملک کے بھولے لوگوں، اب بھولا پن چھوڑو اور اپنا حق مانگنا سیکھو. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد.